The controversy and the political slugfest over the collapse of the Shivaji statue. The Mahavikas Aghadi holds a protest in Mumbai against the Eknath Shinde-led government over the collapse of the Chhatrapati Shivaji Maharaja statue in Sindhurg district. Top opposition leaders including the Shiv Sena UBT chief Uddhav Thackeray, State Congress President Nana Patole and NCP-SP Supremo Sharad Pawar are participating in the protest. Opposition party workers joined the protest named hit with footwear carrying massive slippers as they marched from Hutama Chowk to the Shivaji statue at the Gateway of India. A 35-foot statue of Maratha Empire founder Chhatrapati Shivaji Maharaj, unveiled by Prime Minister Narendra Modi last year at a fort in Maharashtra's Sindhurg district, collapsed on August 26th. Chief Minister Eknath Shinde blamed the statue collapse due to the strong winds. That has sparked a massive political row in Maharashtra. The project was handled by the Navy in the coordination with the state government. Police have arrested the structural consultant for the project and its contractor. They have been charged under the sections relating to the attempt to murder, culpable homicide and act of endangering life and safety of others. Amid the political backlash, Prime Minister Narendra Modi has apologized to the people for the statue's collapse, stating that Chhatrapati Shivaji Maharaj is not just a name or a king. For us, he is the deity. Today, I bow my head at his feet and apologize to my deity. I also apologize to the people that are hurt by the collapse, unquote. By the statements come by Prime Minister Narendra Modi. Meanwhile, some reactions are pouring in from the MVA over the protest of the MVA. Now let's listen in. जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने तो अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा अपमान किया। क्या उसकी माफी कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी मांगेगी? मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री के तौर पर कांग्रेस ने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बुलडोजर से हटाया, तोड़ दिया। क्या उसकी माफी कांग्रेस मांगेगी? भाग्य आप तो चैनल वाले हो। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले का खंडन हुआ, आपको पता नहीं है? इतना तो मतलब बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। वो पूछते तो बात अलग है, सबको पता है ना हम क्यों आ रहे हैं वहां। हमारे लिए जो देवता समान छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतले का खंडन हुआ, महाराष्ट्र की अस्मिता धारा तीर्थ पर गिरी। हमारी आस्था, हमारी अस्मिता, हमारा स्वाभिमान सब कुछ टुकड़े टुकड़े होकर वहां गिरा था। और इतना अपमान होने के बावजूद भी उसका समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों के सत्ता पक्ष के लोग उसकी निर्भत्सना न करें तो क्या करें? हम तो यहाँ कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है छत्रपति शिवाजी महाराज के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ। शर्म नहीं आती क्या? कहा बची होगी तो देख लो, अगर है तो। और इसीलिए पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब जिस तरह से इसके बारे में पेश आए कि भाई ये महाराष्ट्र का अपमान है। अब तो हम तो जनतंत्र के मुताबिक हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ भी एक पुतला है, तो वहां जाकर अभिवादन करना चाहते हैं तो हमारे ही महाराष्ट्र में हमें ही पुलिस रोकती है कि वहां अभिवादन भी करने नहीं जाना। यहाँ झंडे लगाए थे, भगवे दिखते क्या कोई? रात को यहाँ 500 झंडे लगाए थे, भगवे गेरुए झंडे हमारे। वो झंडे ही निकालते हो आप लोग? गेरुए झंडे से भी नफरत आई क्या आपको? हिंदुत्व की बात करते हो, झंडा भी निकालते हो। और इतने लाचार पुलिस मैंने कभी नहीं देखी। Honorable Prime Minister was emotional. He expressed his grief over the incidents, but
the ministers, the ministry of Maharashtra, the government of Maharashtra, which should have expressed themselves, they didn't. On the contrary, they started picking up with the opposition in a wrong way and calling it that we are politicizing the issue, whereas this was the most affecting emotional issue which Maharashtra never witnessed in the past. We had done everything in a democratic way. We had applied to the administration, to the police, and we expected that permission would come in due course, which they didn't do. On the contrary, see the deployment which is being done. It looks as if some warlike position is going to take place, but we are assuring and we are expecting cooperation from the same administration and police authorities. देखिए, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, ये महाराष्ट्र की अस्मिता है, स्पिरिट है, और मुझे लगता है कि इसको ठेस पहुंचने का काम इस घटना से घटी है, और लोकशाही लोकतंत्र के माध्यम से यह जो आज जो निषेध मोर्चा किया जा रहा है वो एक लोकशाही का एक भाग है, और इस तरह से परमिशन न देना ये भी लोकशाही का गला घोटने का काम है। तो सरकार ने इस तरह से गला घोटने का काम नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। परमिशन भी देना चाहिए और लोकशाही से अपने अपने मुद्दे व्यक्त करने का। पुलिस ने परमिशन नहीं दिया है, तो अभी क्या कर सकते हैं हम सही मार्ग से वहां तक जाएंगे। हम कोई हिंसा करने वाले लोग नहीं है, हम सिर्फ हमारी भावना व्यक्त कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। इस धरती की शान, महाराष्ट्र की शान, इस मिट्टी को छत्रपति शिवबा की मिट्टी करके जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मिट्टी करके जाना जाता है। उनका पुतला ढह जाता है और इन्हें इसकी जरा भी शर्म नहीं है। कह रहे हैं कि राजनीति मत करो, और वो पुतला ढह गया है। उसके समर्थन में अगर ये भाजपा वाले और ये बाकी सारे लोग अगर ये कर रहे, आंदोलन कर रहे, तो शर्म आनी चाहिए। 13 करोड़ जनता इस महाराष्ट्र की माफ नहीं करेगी। ये बता रहे हैं कि पंतप्रधान मोदी जी ने माफी मांगी, वहाँ 1000 लोगों के सामने मुट्ठी उठा के माफी नहीं मांगते हैं। All right, viewers. Meanwhile, my colleague has also filed an exclusive ground report from the site of protest. Now, let's take a close look. बीते दिनों महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के मालवन में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक प्रतिमा जो है वो ढह गया था, जिसे लेकर अब लगातार सियासत तेज हो रही है। इस वक्त मैं मुंबई के दादर में मौजूद हूँ, जहां पर भाजपा की तरफ से महाविकास आघाड़ी के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, भाजपा का आरोप है कि महाविकास आघाड़ी इस पूरे मामले को जो है राजनीतिकरण जो है वो कर रही है और इस पर सियासत कर रही है। आपको बता दें, 26 अगस्त को जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट की जो प्रतिमा है वो ढह गई थी, जिसे महज 8 महीने पहले ही जिसका अनावरण हुआ था, और जिसे लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो बीते दिनों मुंबई पहुंचे थे तब उन्होंने लोगों से माफी मांगी, जिसके बाद अजीत पवार की तरफ से भी इस पूरे मामले पर जो है माफी मांगी गई है, और अब जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की फिर से वहां पर प्रतिमा बनाई जाएगी। लेकिन इन सबके बीच में महाराष्ट्र में सियासत तेज हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर SIT गठित की गई है। SIT इस पूरे मामले की जांच कर रही है, और SIT की तरफ से कॉन्ट्रैक्टर सहित अन्य लोगों के खिलाफ जो है FIR दर्ज किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में आपको बता दें, महाविकास आघाड़ी के तरफ से जो है लगातार सरकार के ऊपर जो है हमला किए जा रहे थे, और वहीं कहीं ना कहीं जो है आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस पूरे मामले को जो है कहीं ना कहीं सियासी रंग देने का काम जो है वो किया जा रहा था। ऐसा आरोप भाजपा जो है वो महाविकास आघाड़ी के ऊपर लगा रही है, और महाविकास आघाड़ी के खिलाफ आज भाजपा ने राज्य भर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, और जगह जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज की जो महिमा गीत गाई जाती है पोवाड़ा, वो गाकर प्रदेश भर में भाजपा कांग्रेस के खिलाफ, महाविकास आघाड़ी के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में अब आने वाले विधानसभा चुनावों में इन सब का क्या असर पड़ेगा वो देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कुणाल के साथ नीतीश झा, इंडिया न्यूज, मुंबई। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.